hip joint is taught to you already. Hip joint is taught to you, yes or no? Yes. मेडिकल कॉलेज का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि आपको कोई पूछते ये टॉपिक आपको सिखाया है कि नहीं, हम लोग ऐसे देखते हैं। मतलब टॉपिक में क्या सिखाया वो तो सेकंड बात है, सिखाया है कि नहीं। तो हमको कैसा लगता रहेगा, सोचो हम दिन रात इतना प्रिपेयर करके आपको सिखाते हैं और फिर आपको टॉपिक का नाम पूछते हैं कि ये आपको सिखाया था, पूरा टॉपिक भूल जाते, कंटेंट। Hip joint, how to remember? Now I'm going to go very fast, and that's the reason I was waiting for somebody to take this lecture for me. Hip joint, ball and socket. Type is ball and socket. आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, लिखो मल्टी एक्शन। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, या तो प्रीलिम में या फर्स्ट टर्मिनल में या यूनिवर्सिटी, कहीं ना कहीं इसको आपको लॉन्ग क्वेश्चन करके तो इसको प्रिपेयर करना है। तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन, ऐसा ही जबरदस्ती इंट्रोडक्शन, पूछा नहीं तो भी लिखो। हियर mobility is compromised for stability. Shoulder joint is more mobile, hip joint is more stable, less mobile. Type of joint I have already spoken to you. I am going to go very fast. You have to be very fast while writing. Multi-axial ball and socket type of joint. Okay? Synovial joint, multi-axial ball and socket synovial. Then comes articulating surfaces. Articulating surfaces write like this. Superomedially क्या है? Superomedially is the acetabulum. खाली acetabulum नहीं है. Superomedially there is the lunate surface of the acetabulum. Okay? So normal people will write acetabulum. तो हमको उससे आपका स्टैंडर्ड समझ में आएगा, acetabulum. तो 10 में से हम 5 मार्क उधर ही दे देते, आगे का पढ़ते ही नहीं। Lunate surface of acetabulum, the fossa, acetabular fossa, and the transverse acetabular ligament notch, which is bridged by the transverse acetabular ligament. So इतना आएगा superomedially. Then inferolaterally. What is there inferolaterally? Inferolaterally is the head of the femur. Inferolaterally is the head of the femur. So ये हो गए articulating surfaces. Articulating surfaces के बाद the next point you write is capsule. So articulating surfaces में superomedially, inferolaterally ऐसा लिखो। फिर आएगा capsule. Capsule. Capsule is attached to the rim of the acetabular fossa, where actually acetabular labrum is also there, the transverse acetabular ligament, and the capsule inferiorly is attached to intertrochanteric line anteriorly and just medial to the intertrochanteric crest posteriorly. It is not attached to intertrochanteric crest posteriorly. 1 to 2 millimeters medial to the intertrochanteric crest posteriorly. So anteriorly it is attached to intertrochanteric line, posteriorly attached to, it is medial to the intertrochanteric crest. Okay? Then capsule में वो तो लिखा, आगे किधर, पीछे किधर, ऊपर किधर, नीचे किधर. Then you have to write type of fibers in the capsule. One are retinacular fibers. These retinacular fibers, they are vertical fibers. दूसरे टाइप के फाइबर्स कौन से हैं कैप्सूल में? Zona orbicularis. These are circular fibers. So 2 types of fibers आपने लिख दिए. Retinacular fibers which are vertical and zona orbicularis. Then you have to write the openings in the capsule. Capsule में openings कौन से? Bursa, it communicates with bursa deep to श्वास major. ऐसे हर एक इसमें openings है.
जैसे शोल्डर जॉइंट में देयर इज ओपनिंग फॉर बाइसेप्स ब्रेकियस, शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट में फॉर पॉप्लिटेस टेंडन। यहाँ पे बर्सा डीप टू श्वास मेजर। सो कैप्सूल में हमने लिखा एंटीरियर अटैचमेंट, सुपीरियर अटैचमेंट कहाँ पे, अराउंड द एसिटाबुलर रिंग। इंफीरियर अटैचमेंट कहाँ पे, इंटरट्रोकैंटरिक लाइन एंड मीडियल टू इंटरट्रोकैंटरिक क्रेस्ट। फिर लिखा हमने 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। कौन से 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स है, रेटिनाक्युलर आणि बाजूचा मुलगा जोना ऑर्बिक्युलरिस, जोना ऑर्बिक्युलरिस। उसके बाद लिखा है ओपनिंग। उसके बाद आता है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स ऑफ द नी जॉइंट आर 6। These 6 are divided into 3 and 3। आपको ये कैसा याद रखना है मैं आपको बता रहा हूँ। 6 are divided into 3 and 3। These 3 are divided into 3 parts of the hip bone। हिप बोन के 3 पार्ट से आते हैं। इलियम से आता है इलियोफीमोरल लिगामेंट, प्यूबिस से आता है प्यूबोफीमोरल लिगामेंट, और इस्चियम से आता है इस्चियोफीमोरल लिगामेंट, इस्चियोफीमोरल लिगामेंट। ओके, सो हमारे तीन पार्ट से 3 लिगामेंट्स आते हैं। 3 पार्ट से 3 लिगामेंट हिप बोन के। ये एक सेक्शन है। दूसरा सेक्शन बाकी के 3, ये एसिटाबुलर फोसा के अराउंड है, बाकी के 3। ओके, ये 3 पार्ट्स। तो कैसा है, तो इलियोफीमोरल स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन द बॉडी, strongest ligament in the body, called as Biglows ligament, prevents the trunk from falling backwards. Line of gravity passes posteriorly to the hip joint, so trunk has a tendency to fall backwards, but iliofemoral ligament keeps it straight. तो ये anterior superior iliac spine है, anterior inferior iliac spine है। anterior inferior iliac spine से ये निकलती है inverted Y shaped Iliofemoral ligament, also called as Biglows ligament, inverted Y-shaped। ओके, आपने अभी यही सीखा है क्या, आपने यही टॉपिक्स? हाँ, सो दैट्स हाउ दे आर आंसरिंग नाइसली। इन्वर्टेड Y-shaped। ऊपर का अटैचमेंट कहाँ पे है, एंटीरियर इंफीरियर आइलियक स्पाइन, नीचे का अराउंड द इंटरट्रोकैंटरिक लाइन, 2 ends of the intertrochanteric line, not on the intertrochanteric line completely, 2 ends of the intertrochanteric line। फिर नेक्स्ट क्या है, प्यूबोफीमोरल लिगामेंट। क्या है नेक्स्ट, प्यूबोफीमोरल लिगामेंट। तो वो इट कम्स फ्रॉम इलियोप्यूबिक एमिनेंस, इलियोप्यूबिक एमिनेंस। ओके, ये आपको at some point you have to be thankful to Topiwala National Medical College for a teacher like Nagaraj sir taking this topic, then Nitya madam revising it again and again, now I am teaching you on blackboard। ऐसे आप घूम के आओ पूरे इंडिया में और कहीं पे भी मेरे को दिखाओ कि एक टॉपिक 3 बार सिखाते, मैं छोड़कर चला जाऊंगा यहाँ से। कहीं पे भी आप मुझे दिखाओ, एंड यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस। Iliopubic eminence, from the iliopubic eminence, and then iliopubic eminence say it joins the lower band of iliofemoral ligament। ओके, सो ये था एंटीरियर इंफीरियर आइलियक स्पाइन से निकलता था, ये इलियोप्यूबिक एमिनेंस से निकल रहा है। इस्चियोफेमोरल स्टार्ट्स फ्रॉम इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ये इस्चियम से निकलता है, ट्यूबरोसिटी मत लिखो, ये इस्चियम से निकलता है। ये वीकेस्ट है, ये वीकेस्ट, दिस इज द वीकेस्ट, ये वीकेस्ट। इसके लिए मैं फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज 2 बार ऑलरेडी सिखाया है आपको ये टॉपिक। दिस इज वीकेस्ट। सो पीछे से अगर आप देखोगे तो ऐसे इस्चियम है और यहाँ पे ये हिप बोन है। सो दीज fibers, some of these fibers, they go and get attached to tip of the greater trochanter, and remaining fibers they join the zona orbicularis. What is zona orbicularis? Circular fibers of the capsule, zona orbicularis, circular fibers।
सो कुछ फाइबर्स टिप ऑफ ग्रेटर ट्रोकैंडर को जाते हैं और कुछ जोना ऑर्बिकुलरिस में जाते हैं, वीकेस्ट लिगामेंट। ओके, नाउ द रिमेनिंग 3 लिगामेंट्स, ये 3 आते हैं 3 हिप बोन के पार्ट से। रिमेनिंग 3 कहां से आते हैं? एसिटाबुलर लेब्रम से। सो एसिटाबुलम ये, तो ये हमारा लूनेट सरफेस ऑफ एसिटाबुलम। तो पहला है एसिटाबुलर लेब्रम, जैसे ग्लिनाइडल लेब्रम था। दिस इज मेड अप ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज, दिस इज मेड अप ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज, surrounds the acetabulum, deepens the cavity, surrounds the acetabulum, deepens the cavity. तो एक है एसिटाबुलर लेब्रम। दूसरा ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, इट ब्रीचेस द नॉच, ब्रीचेस द नॉच। ये नॉच का पर्पस क्या है मैंने आपको बताया, बिकॉज हेड ऑफ फीमर को ब्लड वेसल्स नर्व सब जाना चाहिए, तो इसके लिए नॉच है। यह लिगामेंट है, लिगामेंट के नीचे से हेड ऑफ फीमर को ब्लड सप्लाई वगैरह जाता है, जॉइंट इंट्रा आर्टिकुलर सप्लाई जाता है। हा बाळा, काय झाला प्रॉब्लेम, काय मला विचार, काय सांगू? एनिथिंग यू मिस्ड? यू आर आस्किंग देम ना, मला विचार ना। हाँ, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, दिस इज ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। ये तो हमारे आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस में आता है। फिर यहाँ पे है हेड ऑफ फीमर, उसके ऊपर है फोविया कैपिटिस। वो फोविया कैपिटिस से ये ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट को जाता है एक लिगामेंट विच इज कॉल्ड एज लिगामेंटम टीरिस और लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, लिगामेंटम टेरिस, TERAS, टेरिस, जो भी जैसा भी आपका इंग्लिश अच्छा है आप बोल सकते हैं। जैसे हमारे कान के अंदर एक बोन होता है स्टेप्स, कोई उसको स्टेप्स बोलते हैं, कोई स्टेपीज बोलता है, स्टेपीज सब चलता है। सो दिस इज लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। सो 3 लिगामेंट यहाँ पे ही है, एक सराउंडिंग द एसिटाबुलम, एक ब्रिजिंग द नॉच विच इज ट्रांसवर्स एसिटाबुलर, और एक हेड ऑफ फीमर से ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। सो दिस इज हाउ यू रिमेंबर 3 लिगामेंट हिप बोन्स के अलग अलग पार्ट से आते हैं और 3 लिगामेंट्स आर अराउंड द एसिटाबुलम। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द लिगामेंट्स। इससे आपको आधे मार्क मिल जाएंगे। फिर ब्लड सप्लाई क्या है? मीडियल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, लैटरल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ऑब्चुरेटर आर्टरी, these are the blood supply. नर्व सप्लाई क्या है? ऑब्चुरेटर नर्व थ्रू एंटीरियर डिवीजन, फीमोरल नर्व वाया नर्व टू रेक्टस फीमोरस, ये आना ही चाहिए। नर्व सप्लाई खाली फीमोरल नर्व नहीं लिखेंगे, फीमोरल नर्व वाया नर्व टू रेक्टस फीमोरस, ऑब्चुरेटर नर्व वाया एंटीरियर डिवीजन, बिकॉज फीमोरल नर्व वाया नर्व टू वास्टस मीडियलिस supplies the knee joint and obturator nerve via posterior division supplies the knee joint. So obturator nerve via anterior division will supply the hip. Via nerve to rectus femoris, femoral nerve will supply. Is it clear? So femoral nerve और उसके अलावा superior gluteal nerve, nerve to obturator internus, ये भी। फिर मूवमेंट्स में इसका चार्ट थोड़ा सा अलग है। ये आएगा मूवमेंट, फिर आएगा एक्सिस, फिर इसमें ना एक रेंज, यही खाली जॉइंट में रेंज है, रेंज और मसल प्रोड्यूसिंग द मूवमेंट। एक्चुअली ये मैं टॉपिक आपको सिखाने वाला ही नहीं था, मैं ऐसे ही, मुझे दूसरा कुछ सिखाना है। 3 मिनट है मेरे पास और दूसरा टॉपिक चालू करना है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, 2 मूवमेंट्स, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, दोनों का एक्सिस रहेगा ट्रांसवर्स एक्सिस। देखो ऐसा, यहाँ से एक बार डालेंगे, यहाँ से बाहर निकालेंगे तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है। ओके, फ्लेक्शन का रेंज इज ऑलमोस्ट लिमिटेड अप टू योर टिल द it touches the chest wall, maximum range is chest wall। बाकी वो चाइनीज बीनीज लोगों पे मत जाओ, वो ऐसा करके यहाँ घुमा के फिर वापस ऐसा निकाल, उनको बचपन से ही उधर छोड़ देते हो, जन्म हुआ तो उनका हाथ पैर हिलाने को चालू करते। इसका रेंज खाली 15 से है, मतलब इसका मैं यहाँ पे रेंज पूरे नहीं बताने वाला हूँ, आप लिखोगे आपके बुक में से देख के, खोलो।
इसमें खाली 15 लिखा है, पीछे के बाजू हिप जॉइंट। जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। मूवमेंट्स रेंज 15 लिखा है, 15 डिग्री एक्सटेंशन का। आप बोले अरे लेकिन लोग तो, मेरे को खुद को ही इतना जम रहा है। नहीं, उसका है 15 डिग्री। आप टेढ़े होके पेल्विस को ऐसा करके येड़ा बना रहे लोगों को। ओके, तो उसका रेंज है 15 डिग्री। ओके, एक्सटेंशन 15 डिग्री। फ्लेक्शन का मसल्स इलियोसवास, एक्सटेंशन का चीफ एक्सटेंसर ग्लूटेस मैक्सिमस इन हैमस्ट्रिंग्स। एडक्शन, एबडक्शन, इसका एक्सिस कैसे रहेगा? देखो, ये अगर ऐसा ऐसा मूव हो रहा है तो एक्सिस है एंटीरो पोस्टीरियर। सो एक्सिस इज एंटीरो पोस्टीरियर। रेंज बोलो। एडक्शन इज लिमिटेड टू द ऑपोजिट साइड बोलते हैं, बट एक्चुअली आगे भी जाते हैं, आगे भी जाते हैं। एबडक्शन का लिखा है ना, एबडक्शन का कितना है? 50। ज़्यादा ट्राई नहीं करने का, बिकॉज हमारे लिगामेंट्स ओवर द इयर्स, इसके लिए फर्स्ट डे योगा में जाके सडनली आप चक्रासन करोगे तो कैजुअलिटी में जाओगे उसके बाद नायर हॉस्पिटल। बिकॉज हमारे लिगामेंट्स स्लोली 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 आप स्ट्रेच करोगे तो फिर उसका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं। चाइना के जो बच्चे जिम्नास्टिक करते हैं उनको बचपन से तो उनके लिगामेंट्स ऐसे हो गए। अब अपना इलियोफेमोरल लिगामेंट इतना स्ट्रांग है कि आप ऐसा ऐसा करोगे तो हो जाएगा चक्रासन, बट एंड में कट करके आवाज आएगा। ओके, देन एमआर, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन। रेंज बोलो। 60, हाँ 25 मीडियल रोटेशन, इसका 60। अच्छा, एडप्टर्स, एडप्टर्स कौन कौन से एडप्टर्स? एडप्टर लॉन्गस, ब्रेविस, मैग्नस, ग्रासिलिस। एडक्शन कहाँ पे काम को आते हैं? फुटबॉल खेलते समय। तो इसके लिए उसमें जो लिखा है ना बुक में कि लिमिटेड नहीं, मैं बोलता लिमिटेड की तरह ऐसा भी जाता है थोड़ा सा नाचते समय, कोली डांस, एडक्शन। कभी आपने बचपन में किया रहेगा स्कूल में, बट कभी आपने एडप्टर लॉन्गस मैग्नस के बारे में सोचा, उनको थैंक यू बोलो अभी। एबडक्शन, ग्लूटियस मीडियस मिनिमस। एबडक्शन, ग्लूटियस मीडियस मिनिमस, टेंसर फेशियल। मीडियल रोटेशन भी सेम, ग्लूटियस मीडियस मिनिमस, टेंसर फेशियल आता, वो सेम मसल्स है, उनका एक्शन ही वैसा है, मीडियल रोटेशन है। और लैटरल रोटेशन, शॉर्ट लैटरल रोटेटर्स, superior gemellus, inferior gemellus, obturator internus, quadratus femoris, and gluteus maximus। gluteus maximus, बिकॉज ये दोनों मीडियस और मिनिमस इधर है, इसके लिए मीडियल रोटेशन करते हैं, मैक्सिमस पीछे इंसर्टेड होता है, इसके लिए वो लैटरल रोटेशन में इन्वॉल्व है, पर उसका मेन एक्शन इज एक्सटेंशन। फिर उसके बाद इतना सब करने के बाद 2 मार्क के लिए ये पूछते हैं, अप्लाइड एनाटॉमी, CDH, congenital dislocation of hip। इसके अलावा एक और है, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन का एक्सिस इज वर्टिकल, एक्सिस इज वर्टिकल। ये चार्ट आप पूरा करके लाओगे, मैं देखने वाला हूँ सबके नोटबुक में नेक्स्ट टाइम। फिर रुको रुको रुको, बंद नहीं किया ना? फिर है अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी में एक लिखो CDH, कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप। कुछ कुछ बच्चों का कंजेनिटल डिसलोकेशन होता है, बिकॉज वो भी फिर उसमें बहुत कुछ ऑपरेशन हो, बिकॉज एसिटाबुलम डिफेक्टिव होगा तो डिसलोकेशन होगा। फिर आपने ऐसा 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 दिमाग का बहुत खुजली किया, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। पर्थिस डिसीज करके जिसमें हेड ऑफ फीमर बिकम्स फ्लैटर, फिर भी याद नहीं आ रहा है कुछ। ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ हिप जॉइंट, मैंने आपको इसके बारे में बताया था लास्ट, बताया था ना।
मतलब नॉर्मली बाय गॉड्स ग्रेस मैं ना खुद किसी को मेडिकेशन कुछ प्रिस्क्राइब करता हूँ, पेशेंट ठीक हो जाता है। मेरे अंकल के घर पे मैं गया तो ऐसे ऐसे चल रहे थे, तो मुझे लगा बैक स्पाज़म है। माय ग्रैंडमदर इज स्टिल अलाइव, एज 99 इन पुणे। तो ही वॉज शी हैड ट्यूबरकुलोसिस, तो ही वॉज नर्सिंग। मुझे लगा बहुत वो ड्रेसिंग कर करके हो, तो मैंने उनको पेन किलर्स देता रहा। फाइनली द डायग्नोसिस केम एज ट्यूबरकुलोसिस ऑफ हिप जॉइंट। सो लिखो, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ हिप जॉइंट इज वेरी कॉमन इन इंडिया। और पेन किलर वगैरह कुछ नहीं, 6 महीना एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स लिया, ही स्टार्टेड वॉकिंग नॉर्मली। ओके, सो ऐसे ये एंगल से भी सोचना पड़ता है इंडिया में कि कहीं टीबी हिप तो नहीं हुआ। ओके, एंड देन डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, कंजेनिटल हो गया, उसके बाद डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। पोस्टीरियर डिसलोकेशन वेरी कॉमन इन एक्सीडेंट्स। देखो एक्सीडेंट में आगे के चेयर पे बैठा है ड्राइवर सीट पे, और फिर आगे गया, आपका इधर से इम्पैक्ट आता है, बैठे रहते लोग, फिर पोस्टीरियर डिसलोकेशन होता है, उसमें साइटिक नर्व डैमेज हो जाता है। बस हो गया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।